तो दोस्तों आज मैं आपको घुमाने वाली हूँ मकलॉडगंज और इस टाइम मैं बैठी हूँ भागसू वाटरफॉल के ठीक सामने। और खाना आ गया है यहाँ पर। पकड़ के धीरे धीरे जा। एक्सपेंसिव ट्रैकिंग पे मतलब ऐसे तो ट्रेन ट्रैक करना था लेकिन आज क्रॉसिंग थी। आज तक मैंने इतनी डिफिकल्ट क्रॉसिंग कभी नहीं करी। 800 रुपये में मकलॉडगंज घुमाएंगे और उसमें सीधी से जन्नत जैसी लग रही है यार मकलॉडगंज। चलने लगे तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एडवेंचरस होने वाला है। राधे राधे एवरीवन, माय नेम इज़ यामी और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर रोड्स। इस वीडियो में आप देखने वाले हो कि मकलॉडगंज आकर आपको किस जगह नहीं जाना चाहिए और किस जगह जाना चाहिए। सो इन प्रीवियस वीडियो यू हैड सीन आई टुक द बस फ्रॉम चामुंडा देवी टेम्पल टू धर्मशाला. So after 40 minutes we made it to Dharamshala and we're gonna take a mini bus to McLeodganj and they are charging only 11 rupees per person. It is quite cheap, which is very cool. Moreover, we enjoyed a beautiful view from the bus. This is the main bus stand or taxi stand of McLeodganj and you can take any bus or taxi to get anywhere. Now we are heading to check in the hotel because we have completely exhausted. There are numerous numbers of hotels and hostels and the charges are commenced with 500 rupees. हमने मकलॉडगंज में लिया है। ये रूम छोटा है बट कोजी है बट अच्छा है। यहाँ का सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो इस रूम की, पहले मैं आपको रूम दिखा देती हूँ छोटा छोटा सा। ये देखो, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हो इतना सुंदर व्यू आपको कहाँ मिलेगा देखने को। ये हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा सा विंडो है। ये देखो, यहाँ से लेटे लेटे व्यू देख सकते हो। ये कबर्ड है और ये है आपका वॉशरूम। Right now we are at Mall Road. We are going to eat something because we didn't have anything. It's already been 4 p.m. so it's too late for the lunch. So we have come here at the beautiful small cafe which is just on the Mall Road and we have ordered some Hakka noodles and the French fries. Basically McLeodganj is famous for beautiful cafes and restaurants. I found it priced a bit high in the cafe according to the cafe, but nonetheless we enjoyed it. कितने का है ये? छोटा भी बचता है क्या? 350 से स्टार्टिंग है ना। छोटा वाला बजाना? ये 350 का है, 650 या 900, सबसे बड़ा 1200 का। I am very fond of Feng Shui items, so I am trying to play a mellifluous sound from the singing bowl. Actually, it is used for the meditation and it creates a home sound. Since half of the day has already passed, so we have come here at Dalai Lama Monastery, which is just on the Mall Road. It's a beautiful monastery and also the dwell of Dalai Lama. The most compelling thing is it is also called the Mini Lhasa. Actually, the large Tibetan community and the presence of traditional architectural designs drawn from Tibet have enhanced the area. Every Sunday they organize a sale where you can buy handicrafts and garments, but I find it very expensive. Tibetan Institute of Performing Arts is just a kilometer away and organize a 10-day festival from the second Saturday of April.
I'm spinning all the prayer wheels because it is believed that it is the best way to chant the God's name. So this is the main hall of the monastery where all the monks perform their prayer rituals every day. Whenever I visiting monastery, it makes my mind calm and peaceful. Moreover, the experience was quite good. Now we are going to try a Tibetan dish laughing. देख लेना आग के सामने बनाएगा। सिटी ध्यान से देखो, यहाँ पर वो है। चावल का बेस है, ठीक है। हाँ। अब देखना क्या कर, ये गार्लिक पेस्ट है, अरे वाह, ठीक है। ये गार्लिक हो गया, ये नमक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, न्यू डिश है हमारे लिए। मिर्ची कितना? बहुत मीडियम। बहुत कम। हाँ बस बस बस। ये तो पता ही है, चाउमीन में डलते हैं ना। सोया। हाँ सोया। ये हो गया वाई वाई, ठीक है। ये क्या है? हाँ वाई वाई अब का है, वेज नहीं है ये। हाँ। फिर आग के सामने ही बनाएगा, वेज बोल के कोई गलत चीज़ नहीं खाएगा। ले लेना, चलो उधर आ जाओ। I could not try this because I had a fast, but the next coming days I will definitely New dish try try it. कर रही हो तुम, It हाँ? might be delicious, but being a Krishna devotee, I couldn't break my fast only for just a food. No, never. अरे यार तुम्हें क्या, सीधी तुम हाथ से उठाओ। कैसा है, कैसा टेस्ट कैसा है? अच्छा है। तो पहले दिन इफ़ यू डोंट वांट टू गो एनीवेयर तो सबसे पहले आप दलाई लामा मोनेस्ट्री ज़रूर विज़िट करना और थोड़ा बहुत मॉल रोड पे घूम के एक्सप्लोर करना। तो आप पहला दिन अपना इस तरह से स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो आपको यहाँ पर सुबह ही आ जाना होगा ताकि आपको एटलीस्ट हाफ डे मिले एक्सप्लोर करने के लिए। So it was slowly getting the dark by Get Around the Mall Road, so we made it to Pure Veg restaurant, the Govinda's Dhaba. It is my second time to visit this place because I like their food. The fried rice was super delicious. राधे राधे दोस्तों, तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है हमारी धर्मकोट जाने के साथ। अभी हम लोग मकलौडगंज से जा रहे हैं धर्मकोट में थोड़ा घूमेंगे। हमने वैसे तो यहाँ से जो ऑटो बुक होता है ना, वैसे कई जगह आपका टूर पैकेज बना देते हैं, मतलब ऐसे 800 रुपये में मकलौडगंज घुमाएंगे और उसमें धर्मकोट इंक्लूड नहीं होता, और 900 रुपये में धर्मशाला घुमाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ पहले धर्मकोट, ठीक है। धर्मकोट में अभी पता नहीं हमें कितना टाइम लगेगा, अगर अच्छा लगा तो थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे वहाँ पे। धर्मकोट के बाद फिर हम वापस यहीं आ जाएंगे और उसके बाद देखेंगे टाइम बचेगा तो फिर और कहीं चलेंगे। जो चलने लगे मंजिल से बेहतर लगने लगे। अब यहाँ से हम नीचे की तरफ जाएंगे तो देखते हैं नीचे क्या क्या है। तो यहाँ से व्यू देखो यार, ये देवदार के पेड़ है ना, इतने मस्त लगते हैं। कितनी सारी जगह है जहाँ पर भयंकर गर्मी पड़ रही है और यहाँ इतना खूबसूरत मस्त वेदर हो रखा है ना। टेक्निकली आज हमारा पहला दिन है मैक्लोडगंज में, तो आज हम अपने पहले दिन आए हैं धर्मकोट मैक्लोडगंज से 4 to 5 किलोमीटर से दूर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जिसके लिए आपको यहाँ पर ऑटो मिल जाते हैं। ऑटो वाला यहाँ पे ड्रॉप करने के लिए आपको लेगा 100 रुपीज़।
कोट में 99% आपको सिर्फ फॉरेनर्स ही देखने को मिलेंगे। दिस प्लेस इज ऑल्सो कॉल्ड अ मिनी इजराइल। धर्म कोट is specially famous for different kind of beautiful and aesthetic cafes. Usually people gallivant to Dharamkot to visit beautiful and aesthetic cafe, but apart from that there is nothing more. If you want to shop from Dharamkot, but the price is much more higher than the McLeodganj market. The reason is since यहाँ पर foreigners रहते हैं इसलिए prices भी उन्होंने foreigners के हिसाब से ही लगाए हुए होते हैं। ग्रीन है ना इसके साथ। There are so many shops of silver jewelry because foreigners wears only silver and the shopkeepers sell their jewelry in a sky high price. There are not much options to stay here, but nonetheless if you want to stay here you can book your stay online. अगर आप फैमिली के साथ हैं तो यहाँ मकलॉडगंज घूमने के लिए आप टैक्सी या फिर ऑटो बुक कर सकते हैं, जो कि ऑटो टैक्सी स्टैंड से और ऑटो स्टैंड से हो जाता है बुक। लेकिन अगर आप सोलो हैं या आप कपल्स में आए हैं या आप 2 पर्सन्स हैं तो आप यहाँ पे स्कूटी हायर कर सकते हैं। These are solid perfumes. Yes, this is perfume. You know grass, ganja? No. Ganja piso. You want something special? So we already have been 2 hours in Dharamkot. Now we are thirsty, need some drink. So we are supposed to visit any cafe to quench our thirst. Well, this place is way more expensive as compared to McLeodganj Market, Mall Road. Isn't it, Siddhi? I want to try something different, cuisine of different country, like sushi. I've never tried before. सुशी नहीं मिली, फिर वापस आ गए अपने पुराने देसी टेस्ट पे। मैंगो लस्सी, मैंगो शेक, मैंगो शेक। यहाँ पे 2 जगह को मैं स्किप कर रही हूँ, नड्डी और डल लेक, वो दोनों साथ में ही हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ खास घूमने के लिए है नहीं, सिवाय पहाड़ों का व्यू है और कुछ भी नहीं है, जो कि मैंने अपने लास्ट ईयर वाले वीडियो में दिखाया हुआ है, जिसमें मैंने आपको मकलॉडगंज दिखाया। उस वीडियो में आप देख लेना, अगर आपको पता चल जाएगा कि वो जगह घूमने लायक है या नहीं, इसलिए मैं वो दोनों जगह स्किप कर रही हूँ। So after spending 2 hours, we are heading to the Bhagsunath waterfall for zip lining. This place is worth visiting once. ये जगह सिर्फ एक बार घूमने लायक है, but nonetheless we had a very good time here. Now we are heading to the auto stand to take the auto to Bhagsunath waterfall, and we are paying 80 rupees to get there. One thing I must say that the auto and the taxi service are very nice in McLeodganj to get around the place. Actually, they have fixed rates, so there is no kitch of bargaining. Now we have come to the Bhagsunath temple, and there is a local market, but this market is much more cheaper than the Mall Road market. If you want to purchase any souvenirs or something like that, you should shop from here because we have bought some souvenirs from here in a very less price. I also purchased this beautiful Tibetan prayer wheel and in just rupees 280, whereas ये McLeodganj में 400 rupees का मिल रहा है। तो दोस्तों, right now we are at the Bhagsunath temple, and this temple is dedicated to Lord Shiva, and this is the natural water pond which is just down the temple. It is believed that people must visit this temple to seek the blessing of Lord Shiva before going to the waterfall. मैं बैठी हूँ भागसूनाथ टेम्पल के नीचे, और यहाँ से ना 1 किलोमीटर दूर है भागसू वाटरफॉल, तो 1 किलोमीटर पहाड़ों का थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा है, देखेंगे, अभी नहीं जाएंगे, उसके लिए कल या परसों में देखेंगे। Now we are going for the zip lining, and we have no idea how the experience would be. बेटा टाइट से पकड़ के रखी हो, तू एक ही है। जब वो बोलेंगे ब्रेक तो नीचे कितना, ठीक है?
आगे अब सिद्धि कह रही है पैराग्लाइडिंग करने की या बंजिंग जंपिंग। तो दोस्तों आज प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज रहने का, सिद्धि जिप लाइनिंग के बाद थक गई है, कह रही अब मैं कल आऊँगी यहाँ पर। कल आओगी वाटरफॉल? चल ठीक है। Good morning, Radhe Radhe दोस्तों. I just woke up. I saw a majestic view from the balcony. Actually, it's raining outside. The weather is so beautiful and cold. I couldn't even stop myself to record this divine view of clouds. Clouds are literally kissing the mountains, and it probably made my day. Really. सिद्धि इसे जन्नत जैसी लग रही है यार। जल्दी रिकॉर्ड करो, वो देखो वहाँ पे। अरे इधर 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 सामने देख, सामने। हाँ जल्दी आ। एकदम से ना ऊपर से बादल आके गिरे। So दोस्तों, it's already been 2 p.m. because of rain. We have just left our hotel, but nonetheless, we will roaming around. दोस्तों, this is the must visit cafe which is Sandy's Kitchen, which is just located near the झरने का रास्ता, and their food is mouth watering literally. ट्रैकिंग पे मतलब वैसे तो ट्री ऑन ट्रैक करना था, लेकिन आज सुबह इतनी तेज़ बारिश हुई है। कल रात का मौसम ऐसे ही हो रहा है बढ़िया वाला, और सुबह इतनी तेज़ हैवी रेनफॉल हुआ था, उस वजह से क्या है हमने अपना ट्रैकिंग का प्रोग्राम जो है वो पोस्टपोन कर दिया है नेक्स्ट हॉलीडेज़ के लिए। तो अभी सिद्धू को हम वाटरफॉल तक ले चलेंगे। तो यहाँ से करीब 2 किलोमीटर का वाक्सू वाटरफॉल है, तो वहाँ ले चलेंगे। तो वहाँ पे एक फेमस कैफ़े है, तो वहाँ पे भी विज़िट करेंगे। It is just a small and moderate track which is around 2 kilometers away from the Bhagsunath temple to the waterfall. The way is little bit steep but you can cross there easily. एंड भागसूनाथ वाटरफॉल के बाद मैं आपको ले चलूँगी शिवा कैफ़े, जो कि यहाँ पे काफ़ी फेमस है, जो कि भागसू वाटरफॉल से 150 मीटर और ऊपर है। तो हम वहाँ पर भी डेफिनेटली विज़िट करने वाले हैं। अगर आप ट्रैकिंग करने के शौकीन हैं तो ट्री ऑन ट्रैक आपको ज़रूर करना चाहिए। रास्ता यहीं से होकर जाता है, बस इससे आप आगे चलते जाएंगे तो ट्री ऑन ट्रैक आपका ऊपर की तरफ है, जो मैंने लास्ट टाइम किया था। आप इसकी कुछ ग्लिम्प्स देख सकते हैं बीच में वीडियो में। ट्री ऑन ट्रैक की कंप्लीट वीडियो अगर आप मेरी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर उसकी वीडियो दी गई है, जिसमें मैंने कंप्लीट ट्रैक दिखाया है, पूरा रास्ता दिखाया है। और आगे वीडियो में आप देखोगे उसके कुछ ग्लिम्प्स की ऊपर से ट्री ऑन ट्रैक कैसा दिखता है और ऊपर क्या क्या है, वो मैंने आपको आगे क्लिप्स ऐड की हैं, तो आप ज़रूर देखना। हमारे पीछे का वाले रेस्टोरेंट पकड़ के धीरे धीरे जा, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, आराम आराम से, आराम आराम से, बिल्कुल सीधे सीधे चल। आराम आराम से कर। अक्सर तेरी गलियों में रुक जाता हूँ, महसूस करता हूँ वहाँ तुझको। Since the overnight rainfall, the water has become too freezing. I couldn't even remove my shoes and step in the stream, but no one could dare bathing under the waterfall. सिद्धू को
पानी बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत मतलब ऐसा लग रहा है लिटरली स्नो जैसे मेल्ट होके आती है ना, लिटरली ऐसा लग रहा है। निकलो नहीं, बार बार निकलोगी तो फिर वो होएगा। कह रही है डीप फ्रीज होके आ रहा है पानी। तुमसे इधर तक तो जाया नहीं जा रहा, उधर तक क्या जाओ। आज सुबह बारिश हो गई ना बहुत तेज, इस वजह से पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया ऐसा लग रहा है मुझे। मेरी तो हिम्मत भी नहीं कर रही है जूते उतार के अंदर जा। After the rain stopped, I saw a huge stone. I climbed on it and clicked some pictures and videos. तो दोस्तों इसी झरने को क्रॉस करने के बाद ट्रियून ट्रैक का रास्ता आगे कंटिन्यू हो जाता है, जिसकी ग्लिम्स मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ। सो दिस इज़ द टॉप विजुअल ऑफ ट्रियून ट्रैक। यहाँ पर एक ही शॉप है, खाना मिल जाता है यहाँ पर। देयर इज़ अ स्कैरसिटी ऑफ वाटर, सो यू हैव टू कीप योर वाटर बॉटल विद योर सेल्फ। एंड जब हम मिड वे पे पहुँचते हैं तो ऊपर से नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। और इस झरने को क्रॉस करने के बाद ही ट्रियून ट्रैक का रास्ता आगे कंटिन्यू हो जाता है, लेकिन ऊपर से काफ़ी ज़्यादा औसम दिखता है। और ऊपर आप स्टे भी कर सकते हो, 1 नाइट स्टैंड होता है ऊपर, जो कि नीचे से ही बुकिंग हो जाती है उसकी। तो इसकी पूरी डिटेल आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगी, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना ट्रियून ट्रैक का। ये ऊपर से कुछ विजुअल इसका ऐसा दिखता है जैसे कि आप देख रहे हैं। और ट्रियून ट्रैक का पूरा रास्ता मैंने उस वीडियो में दिखाया है और बताया है कि ये रास्ता कितना मॉडरेट है या कितना डिफ़िकल्ट है। जैसा भी है वो आपको वीडियो में मिल जाएगा। So now we are heading to the Shiva's Cafe, which is just 150 meter above from the waterfall. यहाँ के लोग काफ़ी वीडियोस बनाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम पे इसकी हाइप थी, तो मुझे वही देखना है कि ऐसा क्या है इधर जो इतनी ज़्यादा लोग वीडियोस बना रहे हैं। हाँ। तो दोस्तों वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द शिवा कैफ़े, जो कि वाटरफॉल से थोड़ा ऊपर है, लगभग 150 मीटर ऊपर है। सो गाइज़ दिस इज़ अ शिवाज़ कैफ़े। तो जितनी हाइप इसकी लगाई हुई थी इतना तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा यहाँ पर। एक्चुअली हाइप इसलिए भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर इसके कंपटीशन में कोई नहीं है, सिवाय एक ही कैफ़े है यहाँ पर। और फूड इतना भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, थोड़ा सा एस्थेटिक वे में बना हुआ है क्योंकि माउंटेन्स में है इसी वजह से। और फूड हमने ऑर्डर किया था, नूडल्स ऑर्डर किए थे, इतना अच्छे नहीं लगे। रास्ते में हमें कुछ लोग मिले थे, उन्होंने कहा मैगी मत ऑर्डर करना, वो भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा वर्थ नहीं लगी यहाँ आने की। बट ठीक है, एक बार देखने के लिए आप आना चाहते हैं तो डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं। नाउ लेट मी गिव यू अ इनसाइड टूर ऑफ द कैफ़े। And I found it charges are not pocket friendly for everyone, but to be honest it's worth the place only once. So दोस्तों मकलॉडगंज में सिर्फ इतना ही आपके घूमने के लिए है, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा धर्मशाला दिखाऊंगी, वो भी हिडन प्लेसेस जो अभी तक आपने नहीं विजिट किए होंगे। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी धर्मशाला के वीडियो में। राधे राधे।